now अब होता क्या है कि ठीक है, when I talk about paper 4 in A2 psychology, uh, this is gonna be, see, paper 4 of A2 psychology is like a mixture of paper 1 and 2 of AS psychology. सही है. You will have things to do that uh, has similarity in paper 2, and you will have things to remember that are in similarity in depth with paper 1. ठीक है, तो जितना चीज याद रखना है वो पेपर 1 के हवाले से ही गहराई में जाना है हर स्टडी के अंदर, और जो चीजें करनी है वो भी पेपर 2 जैसे ही मिलती जुलती है. ठीक है, I'm gonna show you what I mean. अच्छा, the problem I have with CIE के जो तुम्हारे बुक में चीजें लिखी हुई हैं, राइट, जो तुम्हारे ऑक्सफोर्ड की बुक में, कैम्ब्रिज की बुक में, राइट, the course material that they have, right, that is क्या कहते हैं, never gonna be enough, right? क्योंकि at the end of the day, ठीक है ना, you have to study the, at the end of the day, ठीक है ना, you have to know what is there to know about of the original research. ठीक है ना, तुमने AS के अंदर, I remember, I don't know about you guys, but I've seen students go through the original research papers as well, right? And you're gonna see why is that important. I'm not gonna say that you go through original research paper, right? ये बहुत बड़ा होता है, right? But these are some of the things that we are gonna encounter today that is going to add you, add on your pre-existing knowledge of what you have, जो भी तुम्हें याद है, of health psychology के chapters, right? So we're gonna recap भी हो जाएगा तरीके से, and new information भी add on हो जाएगा. All right, so I particularly said कि मुझे जब पेपर 4 करवाना होगा तो I'm not gonna touch the design question क्योंकि you already, I guess you're well versed. ठीक है ना, one question I get बार बार is to, for example, क्या पेपर जो design question होता है, that is a section B वाला, ये वाला, right? Part A तो हमने बार बार कर लिया, right? Design a question, design a study, design a study. But what about part B? Part B can the psychological and methodological experiences, right? I don't think I've ever given you this homework. I don't think I've ever tested this on you guys. Okay, so okay, if anyone wants to understand what is part B about, it's just this. Let's suppose हम कोई health psychology की study choose करते हैं. That is gonna be this one. ठीक है. So design longitudinal study to find out whether stress has a negative effect on health. So basically you're gonna have to find out कि यार stress से कोई health के ऊपर negative impact होता है कि नहीं होता, and it's supposed to be longitudinal, right? Uh, Important thing for this question is it doesn't specify how many people you need. You can just have one person and do a study on them. So the way it's gonna get carried out is that it is supposed to be a comparison study. It's not gonna be a discovery study, right? You're going to compare something यहाँ पे, and you're going to compare what the person health is before, well, initially, and what the person health is after, when the person exposed to stress for a long amount of time. So you're going to compare the before and after. So this is going to be a comparison study, and the before and after you're going to compare is going to be of the person, right? One person का before क्या है, एक person का after क्या है. So that's why it's gonna be ending up as a repeated maze design. I hope कि अभी तक everyone's well versed on what I'm saying. सब कुछ click कर रहा होगा, ठीक है. So बहरहाल I'm not gonna go into detail के experiment बनाना किस तरह, ठीक है ना, क्योंकि I have talked about it in depth. लेकिन अगर अभी कोई technical मसला है, you can address it during this lecture, मसला नहीं है. लेकिन my main focus is on the B part. सबसे पहले, ठीक है ना, to solve the B part you need to know one thing कि यार ये हमारा हेल्थ साइकोलॉजी का जो पूरा सिलेबस है, राइट, ये चीज कहाँ पे डिस्कस की गई, कोई ऐसी चीज है जहाँ पे ऐसी कुछ को डिस्कस की गई होगी, ठीक है. यस, ऑब्वियसली आई नो कि मुझे स्ट्रेस के चैप्टर के अंदर जाना पड़ेगा. सो आई एम जस्ट गोना शो यू कि किस चीज के बारे में है और ये क्वेश्चन कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है. सही है. स्ट्रेस, या सही. तो I'm going to repeat the question again. Long-term exposure to stress has negative health effects, health consequences. So yeah, so I need to find something which particularly says this. Easy or good news for you guys is that, you know what, हर कोई स्टडी का कोई ना कोई थीम होता है. So ये जो बात की गई है, that is specifically said right in the beginning of the chapter, the gas model हमारा, right, ये वाला. Long-term exposure to stress gets your health in a very bad state. And what I'm talking about is the gas model.
So whatever you do, ऊपर जो जिस तरीके पे एक्सपेरिमेंट करोगे, you don't need to mention the gas model. ठीक है, जिस तरह तुम एक्सपेरिमेंट करोगे, the way you're gonna conduct the experiment is is just gonna be in your own words कि भाई मैं ये करूंगी, फिर ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, right? इसका मसला नहीं है. The part B that I'm addressing is कि ये दो चीजें पूछता है. Yeah, psychological, methodological evidence on which your study is based upon. So yeah, so you need to understand what two things mean. साइकोलॉजिकल एविडेंस का मतलब ये होता है कि यार तुमने जो भी ऊपर किया है, ठीक है ना, इसके अंदर कुछ भी किया होगा तुमने ना, कोई ऐसी रिसर्च है जो तुमने जो भी ऊपर एक्सपेरिमेंट किया है, कोई ऐसी रिसर्च है जो इससे कोई मिलती जुलती है, नंबर वन. या इसका ये मतलब हो सकता है तुमने जो भी ऊपर एक्सपेरिमेंट बनाया है, कोई ऐसा साइकोलॉजिकल रिसर्च है जिसको तुम रेफरेंस कर सकते हो कि आई वॉज इंस्पायर्ड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर रिसर्च, एज एन व्हाट इज योर रिसर्च इंस्पायर्ड बाय, ये क्वेश्चन हो सकता है. या व्हाट इज योर रिसर्च क्या कहते हैं रेफरिंग टू. या नंबर थ्री, तुम्हारे जो ऊपर रिसर्च तुमने कुछ भी किया है, राइट, तुमने किस कॉन्सेप्ट के ऊपर बनाया ये रिसर्च, मतलब इस पूरी रिसर्च के अंदर आपने कौन सी थ्योरी लगाई, कोई ऐसी है साइकोलॉजी की थ्योरी जो आपके रिसर्च में रख रही है, दैट्स द साइकोलॉजिकल एविडेंस. तो ऑब्वियसली जो मैं ऊपर करूंगा ना, उसकी साइकोलॉजिकल एविडेंस इज द गैस मॉडल वाली स्टडी. तो साइकोलॉजिकल एविडेंस में क्या लिखना होगा, गैस मॉडल की समरी लिखनी होगी, दैट द एक्सपेरिमेंट आई हैव डिजाइन अबव, ठीक है ना, द साइकोलॉजिकल एविडेंस फॉर दिस इज द गैस मॉडल गिवन बाय ये बंदी 1936, ठीक है ना, जिसके अंदर तुम बता दोगे जो गैस मॉडल की अपनी समरी है, राइट. सो whatever experiment designing अब वो किससे इंस्पायर्ड है, या कौन सी थ्योरी लगा रही है, या whatever is referring to, that's the psychological evidence, right? For example, खुदा ना आस्ता अगर कोई एक्सपेरिमेंट आ गया, डिजाइन एक्सपेरिमेंट टू चेक ओबीडियंस ऑफ पीपल when they're supposed to do something like hurting other people. So सही है. अब तुम्हारे दिमाग में फौरन क्लिक करना चाहिए यार ये एएस की मिलग्राम जैसी बात कर रहा है, तो ये दैट इज व्हाट योर स्टडी इज गोना बी इंस्पायर्ड फ्रॉम. आई एम नॉट सेइंग कि मिलग्राम की एग्जैक्ट रेप्लिका होगा, नहीं, इट्स गोना बी इंस्पायर्ड अपॉन दैट, is gonna relate to that study, right? So your psychological evidence is gonna be about Milgram. Okay, whatever he studied, you're studying the same thing, right? So psychological evidence is that कि कोई साइकोलॉजी की थ्योरी जो तुम्हारे रिसर्च पे अप्लाई होती हो, राइट दैट. एंड लार्जली यहाँ से पता चल जाता था कि कौन सी लग रही है, ठीक है ना. योर ओनली जॉब इज टू रिमेंबर कि कौन थ्योरी को क्या कहते हैं, यहाँ पे भी लिखा हुआ है. एंड इफ यू लुक एट इट, ठीक है ना, दिस इज द एग्जैक्ट समरी ऑफ द गैस मॉडल, ठीक है. द साइकोलॉजिकल एविडेंस ऑफ माय रिसर्च इज, आगे कॉपी पेस्ट कर दोगे, that's gonna suffice for the psychological evidence. Methodological evidence is यार तुमने जो भी ऊपर रिसर्च किया होगा ना, ठीक है ना, उसके जो कुछ रिसर्च के फीचर्स होते हैं, द 10 पॉइंट्स ऑफ रिसर्च, राइट, जो तुम्हें एड्रेस करने होते हैं. आईवीडीवी क्या है, डिजाइन क्या है, सैम्पल क्या है, सैम्पल टेक्निक क्या है, मेथोडोलॉजी क्या है, डेटा कौन सा है, डेटा एनालिसिस क्या किया, कंट्रोल्स क्या है, एंड आई गेस आई एम मिसिंग वन मोर, एथिक्स. या ऊपर कोई भी रिसर्च की दो चीजें पिक आउट करो एंड यू जस्ट जस्टिफाई कि तुमने ये चीज इस तरह से कैसे क्यों की. फॉर एग्जांपल, तुमने इंडिपेंडेंट डिजाइन क्यों मारा, तुमने रिपीटेड क्यों मारा, तुमने ये सैम्पलिंग टेक्निक क्यों अप्लाई की, तुमने ये क्वेश्चनर्स क्यों अप्लाई किए, तुमने इंटरव्यू क्यों नहीं किया, तुम्हारा डेटा क्वांटिटेटिव क्यों आ रहा है, तुम्हारा डेटा क्वालिटेटिव क्यों आ रहा है, एनीथिंग, जस्ट जस्टिफाई, राइट. अच्छा, प्लीज मेक श्योर तुम्हारी जस्टिफिकेशन, दीज आर नॉट जेनरिक एएस वाली जस्टिफिकेशन, तुम्हारी जस्टिफिकेशन होगा, राइट, यू आर सपोज टू रिलेट इट to the specific scenario given in the question, right? For example, the qualitative data was gathered so that it provides in-depth information will not be enough away. You need to somehow relate it to the scenario. It will give in-depth information so that I can find out, yes, so that it will allow us to know that how long-term exposure, ठीक है ना, क्या कहते हैं, how long-term exposure stress results in negative health consequences, ठीक है ना, and the qualitative data will allow us to find out much more in-depth detail of how the negative health, how the health deteriorates as the stress increases. So, you know, so by finding our qualitative data, we can understand different, क्या कहते हैं, negative, different types of negative impacts that is being, क्या कहते हैं,
that is going to be observed on the individual when they are exposed to stress, as compared to just finding out that how much health that is deteriorated when they're exposed to certain levels of stress. We're also going to find out exactly what type of what aspect did the health deteriorate in. ठीक है, इस तरीके से कुछ लिख दोगे. So you can relate your answer to whatever the experiment is about. I have a question. क्या है वो? Do we need to mention any researcher as well in the methodological evidence? अच्छा, this is a very good question. Do we need to mention any researcher in the methodological evidence as well? Actually, it's a very good question. ठीक है, अच्छा, psychological evidence के अंदर obviously you need to, right? Gas model लिखोगे तो obviously बताना पड़ेगा किसने दिया. This, however, अच्छा, this depends. I don't. Well, CIE doesn't have a solid answer for it, so I don't have a solid answer for it. But I know कि यही है, and I'm gonna make sure, yeah, try my best to explain it as clear as possible. देखो, अगर तुम्हारा रिसर्च के अंदर तुमने कोई किया है, ठीक है, तुमने कुछ ऐसी चीज की है जो बस की है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल तुमने वो इंडिपेंडेंट मेजर डिजाइन लगा दिया या तुमने क्वेश्चनर मार दिया, ठीक है, एंड अगर वो इंडिपेंडेंट मेजर डिजाइन या क्वेश्चनर उस रिसर्च में भी मारा हुआ है जिसको तुम रेफर कर रही हो, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लेट्स सपोज कोई XYZ स्टडी है, राइट, दो ग्रुप बनाए हुए थे उसने, लेट्स फाइंड, आई एम जस्ट गोना मेक अप अ स्टडी, ठीक है ना, एक स्टडी थी, उसके अंदर दो ग्रुप थे, और एक ग्रुप को स्ट्रेस नहीं दिया, दूसरे ग्रुप को स्ट्रेस दे गया, एंड जो ग्रुप स्ट्रेस से एक्सपोज था वो बीमार हो गया. इट्स जस्ट अ फेक एक्सपेरिमेंट दैट आई मेड अप, राइट, एंड लेट्स सपोज ये तुम्हारे सिलेबस में था, एंड लेट्स सपोज ये तुम्हारा साइकोलॉजिकल एविडेंस के अंदर आ रहा है, एंड लेट्स सपोज यू आर सपोज टू कोट इट इन द साइकोलॉजिकल एविडेंस, एंड लेट्स सपोज कि तुमने जो ऊपर रिसर्च बनाई है दैट इज इंस्पायर्ड फ्रॉम व्हाटएवर फेक रिसर्च दैट आई जस्ट कोटेड, सही है, अच्छा, एंड लेट्स सपोज कि तुमने अपने रिसर्च के अंदर भी इंडिपेंडेंट मेजर डिजाइन मारा हुआ है, सही है. अब क्योंकि तुम्हारे डिजाइन में तुमने जो रिसर्च लिखा उसमें भी इंडिपेंडेंट मेजर डिजाइन है, और द रिसर्च जो साइकोलॉजी जो तुम कोट कर रही हो दैट यू आर इंस्पायर्ड ऑन, या दैट जो भी है दैट्स द रेफरेंस पॉइंट ऑफ योर डिजाइन स्टडी, उसके अंदर भी इंडिपेंडेंट मेजर डिजाइन है. सो यू कैन एक्चुअली से कि भाई मैंने अपने स्टडी के अंदर इसलिए इंडिपेंडेंट डिजाइन मारा हुआ है क्योंकि उस बंदे ने जो सेम चीज इन्वेस्टिगेट कर रहा था उसने भी, अब जब तुम ये बोलोगे उस बंदे ने जो सेम चीज इन्वेस्टिगेट कर रहा था, फिर रेफरेंस आएगा, उसने भी इंडिपेंडेंट मेजर डिजाइन मारा है, और उसकी स्टडी के अंदर जब उसने इंडिपेंडेंट मेजर डिजाइन मारा तो उसकी स्टडी के अंदर ये कॉम्प्लिकेशंस हल हो गए थे, या ये चीज़ें कंट्रोल हो गई थी, तो दैट्स वाई मैं अपनी रिसर्च के अंदर भी ये चीज़ें एग्जैक्ट सेम चीज़ों को एड्रेस करने के लिए इंडिपेंडेंट मेजर डिजाइन मार रही हूँ, ठीक है, एंड यू ओनली डू दिस जब तुम्हारे रेफरेंस वाले रिसर्च के अंदर भी वही चीज़ हो रही होगी, या जब तुम्हारे रेफरेंस वाले रिसर्च के अंदर इंडिपेंडेंट मेजर डिजाइन की वजह से मसले आए थे और तुमने अपने रिसर्च के अंदर रिपीटेड मेजर डिजाइन मारा, तो तुमने बेसिकली उसकी ऑपोजिट चीज की. सो जो जस्टिफाई कि तुमने बिल्कुल अलग चीज क्यों किया, तुम उसमें बोल सकते हो भाई मैंने अपने रिसर्च का रिपीटेड मेजर मारा क्योंकि उसके रिसर्च के अंदर कोट आएगा रिसर्च का नाम, उसने इंडिपेंडेंट किया था, उसके रिसर्च में यही मसले आते, तो उस मसले मेरे रिसर्च में वो मसले ना आए, तो जब भी मैंने रिपीट मार दे ताकि मैं उन मसलों से बच जाऊं, ठीक है. सो इस तरीके से रेफरेंस आएगी, वरना नहीं है रेफरेंसेस, वरना और कोई काम नहीं, when you just go for the standard justification of how why you do this, why you did this thing in this particular scenario, वरना फिर रेफरेंस नहीं आएगा. Does that make sense? सही. अच्छा, या तो अगर कोई बीच में क्वेश्चन पॉप अप हो जाए, ठीक है ना, पूछ लेना, मसला नहीं है, ठीक है ना, दिस इज ऑल फॉर यू गाइस. क्या करता मैं, या आई एम जस्ट, अच्छा, फॉर ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजी वाले बच्चे, ठीक है, दिस इज गोना बी द सेम केस, एक बस नीचे स्क्रॉल कर लूंगा, यू गोना हैव ऑर्गेनाइजेशन वाला क्वेश्चन, ठीक है ना, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट वाला, राइट, ठीक है ना, जो भी रिसर्च है यू सपोज टू फाइंड आउट, एंड उसके पीछे कोई साइकोलॉजिकल एविडेंस है, तो जो भी तुम्हारे ऊपर स्टडी मिलती जुलती तुम्हारे सिलेबस के अंदर, दैट्स गोना बी द साइकोलॉजिकल एविडेंस, ठीक है ना, ठीक है. तो हेल्थ एंड ऑर्गेनाइजेशन विल फॉलो द सेम फॉर्मूला,
एबनॉर्मल का एक अलग फॉर्मूला है, ठीक है ना, मैंने एक दफा बता दिया था, मैं दोबारा बता दूंगा। एबनॉर्मल के अंदर कभी कभार, सिर्फ एबनॉर्मल वाले बच्चों के लिए, ठीक है ना भाई, कभी कभार यू नीड टू डिजाइन अ स्टडी टू डायग्नोज समवन, कि भाई इसको क्या मसला है, और यू नीड टू कंडक्ट अ स्टडी टू फाइंड आउट कि इस बीमारी के अंदर बंदा क्या क्या करता है। दो चीज़ों, मतलब बाकी तो अपने अलग सिनेरियो के, यस फाइंड आउट करो कि कौन सा ट्रीटमेंट बेहतर है, राइट, फाइंड आउट करो कि क्या कहते हैं, हाँ कौन सा ट्रीटमेंट बेहतर है, राइट, दैट्स वन सिनेरियो। दूसरा सिनेरियो क्या होगा, इस बंदे को कौन सी बीमारी है, या इस बंदे जब ये इस बीमारी के अंदर बंदा क्या क्या करता है, तो कौन सी बीमारी वाला क्वेश्चन, व्हाट डिसऑर्डर दिस पर्सन हैज, डायग्नोस करो, या इस डिसऑर्डर के अंदर क्लेप्टोमेनिया, इसके अंदर फाइंड आउट करो कि बंदा क्या क्या करता है, या इस बीमारी के अंदर तुम्हें चीजें मालूम करनी कि बंदे के सिम्टम्स क्या है। उस लिहाज से तुम्हारा साइकोलॉजिकल एविडेंस हमेशा डीएसएम क्राइटेरिया होगा, ठीक है, कोई रिसर्च नहीं होगी आगे पीछे की, इट्स गोना बी द डीएसएम क्राइटेरिया। When you're diagnosing someone, you refer to DSM criteria. That's going to be psychological evidence. जब तो एक बीमारी के अंदर कोई specific behaviors note down करने जा रही होगी, so that's also going to refer to a DSM criteria. तो दोनों cases के अंदर diagnostic criteria, that's going to be the psychological evidence. And अगर कोई treatment वाला सवाल आता है तो फिर वो जो abnormal health में चल रहा है वही फॉर्मूला वहाँ पे भी अप्लाई हो रहा होगा, ठीक है। abnormal के बस थोड़ा सा ये चीज़ अलग थी, बाकी सब सेम है, ठीक है ना। I'm just gonna show you one more health psychology question, ठीक है ना, then we're gonna move on. Okay, चलो स्ट्रेस का दोबारा आ गया। Alright, so अच्छा, देखो बी वेरी 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 वेल वर्स्ड विथ योर सिलेबस, ठीक है, क्योंकि यू नीड टू नो के सिलेबस, तुम्हारे सिलेबस का एग्जैक्टली इनसाइड आउट क्या क्या रिसर्चेस हैं, राइट। And this is one classic example of how a student can mess up something that they know by confusing with something that they think they should know but they don't know, and इनको लगा कि मुझे पता होना चाहिए था। आसान लफ्जों में, कुछ बच्चे ऐसा हो सकता है कि क्वेश्चन को पढ़ने के बाद उनको ऐसी चीजें कंसिडर करना शुरू हो जाएंगे अपने दिमाग के अंदर जो सिलेबस का हिस्सा कभी नहीं था, लेकिन उसको भी अपने सिलेबस का हिस्सा बना के स्टडी बिगाड़ देंगे। फॉर एग्जाम्पल दिस वन, you need to conduct an interview to find out the causes of stress, जो नर्सेस अपने जॉब के अंदर एक्सपीरियंस करते, राइट, ठीक है। अच्छा, तुम्हारे स्टडी में स्ट्रेस के चैप्टर में, मैं तुम्हें दिखा भी दूंगा, स्ट्रेस के चैप्टर के अंदर कोई भी ऐसी स्टडी नहीं है, ठीक है, विच स्पेसिफिकली रेफर्स टू नर्सेस, ठीक है, नहीं है कहीं भी। इफ यू बस ये यस कॉजेज ऑफ स्ट्रेस के हैं, लेकिन कॉजेज ऑफ स्ट्रेस इन नर्सेस स्पेसिफिकली नहीं है। तो हलीमा ने सही कहा कि भाई अगर तुम्हारे सिलेबस के नर्सेस के ऊपर कोई स्टडी नहीं है तो ऑब्वियसली तुम्हें कोई नर्स वाली स्टडी स्पेसिफिक ढूंढने की जरूरत नहीं है। जो तुम्हारा जहां तक वर्डिंग तुम्हारे सिलेबस को अप्लाई हो रही ना, वो चीज कहाँ गया, ये वाला कहाँ नहीं, या तुम्हारे सिलेबस वाली वर्डिंग कहाँ तक अप्लाई, कॉज ऑफ स्ट्रेस, बस ये अप्लाई नहीं होती। सो व्हाटएवर स्टडी यू कैन गैदर कॉज ऑफ स्ट्रेस जहां लिखा हुआ, ठीक है ना, cause of stress, you need to identify the syllabus की study, what is the cause of stress for study in my syllabus. So let's see, cause of stress की study जो है ना, गैस मॉडल नहीं है, ठीक है, cause of stress ये वाली study है, चंडोला वाली, ठीक है। So whatever Chandola did, ठीक है, that's gonna be a psychological evidence की research now, ठीक है, this is not the nurses की study but this is a major stress of work वाली study, so it does come close to the work aspect, not the nurses। तो इसके अंदर occupation specify नहीं हुई, लेकिन बाकी सब same है। So you're supposed to adapt the study, not saying copy paste कर दो और सैंपल का nurses डाल दो काम आता हूँ, नहीं नहीं नहीं, just take some concept of this research, nurses के ऊपर अप्लाई कर दो, ठीक है ना, एंड चेंज सम डिटेल्स ऑफ इट बट कीप द कॉन्सेप्ट सेम, के मतलब चीजें सेम आइडेंटिफाई करना शुरू हो जाए। फॉर एग्जांपल इस स्टडी के अंदर ये मसले थे ना, और ये मसले थे, तो नर्सेस के अंदर भी इनमें से कुछ मसले आइडेंटिफाई कर लो, ठीक है ना, which are relatable to nurses, क्योंकि obviously these problems are not always nurse related, this is some other office या ऑक्यूपेशन रिलेटेड, ठीक है ना। नर्सेस के हिसाब से कौन सी चीजें अप्लाई होंगी वो डाल देना एंड वो स्टडी कर लेना, राइट।
बेसिकली व्हाट आई एम सेइंग इज कि भाई नर्स वाली चीज़ तुम्हें खुद से लानी पड़ेगी, ठीक है। बाकी सब फॉर्मूला जो है तुम्हारा चंडोला साहब का था, तो साइकोलॉजिकल एविडेंस के चंडोला आएगा। तो द वे यू डू द स्टडी इज इंटरव्यूज करोगे नर्स से, ठीक है ना। नर्स से पूछोगे भाई हे नर्स, ठीक है, इंटरव्यू करते हैं, ठीक है, ओपन एंड क्लोज एंड, ठीक है ना, नहीं सॉरी, सेमी स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर, अनस्ट्रक्चर इंटरव्यू करना है, वो तुम्हारी मर्जी है, उसको जस्टिफिकेशन बाद में दे देना, ठीक है। कौन से सवाल पूछोगे, अच्छा तुम्हारा जो वेटेज होगा डिजाइनर क्वेश्चन के अंदर, ज्यादा वेटेज होता है, आप सवाल क्या पूछ रहे हो, बेतुके सवाल पूछे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, राइट। तो तुम्हें 4 सवाल पूछने हैं, और 4 सवाल पूछने के लिए तुम्हें वेरी स्मार्ट खेलना पड़ेगा। नर्सेज क्या सवाल पूछेंगे, दैट टेल्स मी द कॉज ऑफ स्ट्रेस एट देयर वर्क। लेट्स सपोज कि आई कैन टॉक अबाउट वर्कलोड, वर्कलोड के बारे में बात कर सकता हूँ, राइट। I can talk about, ठीक है, what can I else can talk about, I can talk about workload कितना है, I can talk about क्या कहते हैं the how much nurses, what impact, I have एक मिनट, I have a question, what is that, shifts, या shifts के ऊपर you know क्या हो सकता है, शिफ्ट के अंदर डे नाइट वाला सीन के ऊपर उनके वर्क स्ट्रेस हो सकता है, नींद सही नहीं रह रहा बेचारे नर्सेस, ठीक है ना। आई कैन ऑल्सो टॉक अबाउट कि यार नर्सेस जो हैं, सो when they see खतरनाक cases, does that take an emotional toll on the nurses, as in being seeing people in critical condition, does that emotionally drain out the nurses? I can ask that, right. I could also ask that the nurses who are young and do not have knowledge of what to do in certain situations क्योंकि younger है, so not knowing certain situations, does that contribute to stress, क्योंकि you learn by experience, right. So these are, अच्छा, so the question I'm making, right, ये मैंने कहीं से नहीं पढ़ा, it's just common sense questions. So जो चीज़ तुम्हारे सिलेबस के अंदर नहीं है, यू नीड टू यूज कॉमन सेंस, जो चीज़ तुम्हारे सिलेबस है वहाँ पे तुम्हारा दिमाग की एफर्ट बच जाती है। बट फॉर दिस टू वर्क आउट, फॉर दिस फॉर्मूला, यू नीड टू बी श्योर कि यू नो एग्जैक्टली तुम्हारे सिलेबस के अंदर क्या है, राइट। सो प्लीज, वरना तुम इस गेम के अंदर फंस जाओगे कि यू आर गोना वेस्ट टाइम फोकसिंग कि यार ये कौन सी स्टडी थी जो मेरे सिलेबस के नर्सेस को रेफर करिए, डजंट एग्जिस्ट, तो यू कैन वेस्ट टाइम वॉन्डरिंग ऑन समथिंग यूजलेस। सो ठीक है ना, बाकी अपनी जगह, ठीक है ना, वही फॉर्मूला लग रहा है, ठीक है ना। सो बी वेरी वेरी केयरफुल ऑन दैट। अच्छा, आई स्टिल हैव नॉट एड्रेस द मेन थीम ऑफ दिस क्या कहते हैं क्लास, दैट इज द पेपर 4 का क्वेश्चन, सॉरी सेक्शन ए ऑफ पेपर 4, ठीक है ना, सेक्शन ए, हाँ सेक्शन ए ऑफ पेपर 4, ठीक है। सेक्शन ए के अंदर अभी मैं हेल्थ साइकोलॉजी को रेफर करूंगा क्योंकि दैट इज गोना बी समथिंग फ्रेश इन एवरीबॉडीज माइंड, ठीक है। एंड यू नो व्हाट, पेपर 4 इज अ वेरी, यू शुड रीड पेपर 4 के सेक्शन ए के आंसर्स, यू रियली शुड, क्योंकि तुम हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखते हो, राइट, दैट्स नॉट इवन इन योर बुक, एंड यू फाइंड आउट कि यार हाउ कहाँ से कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है, राइट। ऐसा भी नहीं कि कभी रेफर भी नहीं हुआ, इस थोड़ी बहुत सेम बात तुम्हारी बुक में भी की होगी लेकिन ऐसे वर्डिंग्स में नहीं की होगी। सो इस तरीके से तुम्हें चीज़ें नहीं पढ़ने को मिलेगी। सो यू नो मंचौसन सिंड्रोम, ठीक है ना, मंचौसन सिंड्रोम अगर किसी को याद नहीं है, ठीक है ना, व्हेन यू फेक हैविंग अ मेडिकल इलनेस, सही है, जानबूझ के। सो कभी कभार टू गेट अटेंशन, ठीक है ना, कभी कभार ज़्यादातर टू गेट अटेंशन, यू डोंट डू इट फॉर फाइनेंशियल कॉजेज के इंश्योरेंस में ही बढ़ जाएगी, यू डोंट डू इट फॉर क्रिमिनल चार्जेस के दूसरा बंदा मेरे से जेल जा सकता है तो जानबूझ के मैं अपने आप को बीमार करूँगी, राइट। इट्स जस्ट जानबूझ के अपने आप को बीमार करना ताकि तुम्हें अटेंशन मिले, ठीक है, दैट्स इट। सो यू डू व्हाटएवर नीड्स टू बी डन अपने आप को बीमार करने के लिए, ठीक है। सो दे डू एज द टर्मिनोलॉजी के फैक्टिशियस डिसऑर्डर क्या होता है, ठीक है, देखो फैक्टिशियस डिसऑर्डर इज द न्यू नेम ऑफ मंचौसन सिंड्रोम, ठीक है ना, ठीक है। मुझे मुझे नहीं पता, मैं बोला था अपने लेक्चर में, नहीं बोला था, डीएसएम के अंदर मंचौसन सिंड्रोम का नाम नहीं है, डीएसएम के अंदर 5 के अंदर जब अपडेट हो गया था उसके अंदर फैक्टिशियस डिसऑर्डर्स को कहते हैं। सो बस नाम चेंज है, चीजें सिम्टम्स बाकी सब सेम है, ठीक है। बहरहाल, सो आई एम टेलिंग यू पेपर 4 कम्स आफ्टर पेपर 3। सो पेपर 3 के अंदर जो चीजें पूछी हैं, पेपर 3 के अंदर एक स्ट्रेस का सवाल आ गया ना, रेस्ट अश्योर्ड के पेपर 4 के अंदर कहीं भी स्ट्रेस का चैप्टर नहीं है कि साइड पे फेंक देना, स्ट्रेस को स्लाइड डिलीट कर देना, ठीक है। पेपर 3 के अंदर स्ट्रेस का क्वेश्चन एक भी नहीं आया, रेस्ट अश्योर्ड पेपर 4 के अंदर स्ट्रेस का क्वेश्चन आएगा। एंड अब
क्योंकि एग्जामिनर ने कम कंटेंट से खेलना है। पेपर 3 के अंदर उसके 5 चैप्टर्स के हाथ में, हेल्थ के ना, उस 5 चैप्टर से कुछ भी दे सकता है। पेपर 3 के अंदर जो चीज पूछ लिया पेपर 4 में नहीं पूछ सकते, तो पेपर 4 के उसके पास अब कम ऑप्शन है देने के लिए। लेकिन एग्जामिनर अब उसका भी फायदा उठाएगा। चीजें कम चैप्टर्स दे सकता हूँ ना, कोई मसला नहीं, एक चैप्टर में इतनी गहराई में पूछना शुरू हो जाऊंगा। सो दिस इज वन क्लासिक एग्जाम्पल कि मंचौसन सिंड्रोम के मैं कितनी गहराई से क्वेश्चन पूछे हुए हैं। सही है। टर्मिनोलॉजी क्या होता है? अच्छा भाई, अब मंचौसन सिंड्रोम के 2 डायग्नोस्टिक फीचर्स बताओ। ठीक है ना, ये जब तुम्हें याद होगा, जब तुम्हें अलीमन अजारन की स्टडी तुमने पढ़ी भी होगी कि एक लड़की क्या क्या करती है, राइट। तो डायग्नोस्टिक फीचर्स क्या होते हैं? जानबूझ के अपना कोई बीमार करवाना और झूठ बोलना। ठीक है, वही लिखा हुआ है, फैंसी अल्फाज। ठीक है ना, अभी तक कोई मसला नहीं आया। आई एम श्योर कि तुम यहाँ पे कर सकते हो या दिस। ठीक है, एंड आई एम गोना शो एग्जैक्टली व्हाट आई मीन बाय दिस। What was it? Adherence. नहीं 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 नहीं, adherence नहीं था यार। This was this. अच्छा आयशा, अगर स्लाइड चाहिए हेल्थ की तो आई एम गोना सेंड यू, क्योंकि आई थिंक ये जॉइंड इन तो व्हाट्सएप के ऊपर विजिबल नहीं होगा, जो पहले स्लाइड जा चुके हैं। ठीक है ना, तो मुझे रिमाइंड करवा दें, मैं तुम्हें भेज दूंगा। ठीक है, भारत, ये तुम्हारा काम है याद रखने का। अच्छा, दिस इज द मंचौसन सिंड्रोम। ठीक है, तुम्हारे बुक के अंदर बस इतनी स्टडी लिखी है, दैट्स इट। आई डोंट थिंक और कुछ है। ठीक है ना, बस ये सीन है, खत्म। ठीक है। अच्छा, सो ये पूछते क्या है पेपर 4 के अंदर? ठीक है, कहाँ? Yeah. Describe one type of physical examination used in the study. ठीक है, let's see what the study itself says. पहले ये देख लेते हैं कैम्ब्रिज के हिसाब से। I'm just find any physical medical procedure जिसमें नाम से लिखा होगा। यहाँ पे नहीं है। Munchausen syndrome, swelling, blah blah blah, seen numerous associated hospital, blah blah blah. Hospital did not have physical cause. Psychiatric ward of nurses found needle. नहीं अभी तक कोई। See, so in the entire summary, they have never mentioned any medical procedure that was done on the client, या patient, जो भी है, right? Nothing like that. Let's see what the book says. बुक के अंदर क्या लिखा हुआ है? ये इसकी बैकग्राउंड है। ठीक है ना, स्वेलिंग था, सर्जिकल ड्रेनेज की गई। अच्छा, सर्जिकल ड्रेनेज इज नॉट अ फिजिकल एग्जामिनेशन, इज अ फिजिकल प्रोसीजर। एग्जामिनेशन से तुम मालूम करते हो कि मसला क्या है। सर्जिकल ड्रेनेज से मसला हल होता है, मालूम नहीं होता। ठीक है, सो इट डजंट काउंट। सीटी स्कैन से अल्ट्रासाउंड। ठीक है ना। अच्छा, the only information that we get is the physical examination showed the girl to be normal healthy। ठीक है ना, and we have CT स्कैन से अल्ट्रासाउंड। ठीक है ना, उसके अलावा ब्लड कल्चर का वाले भी था। ओके ना, या ब्लड कल्चर showed different bacteria, and then the study ends। अच्छा, let's see what the CIE people said। ठीक है ना, so तुम्हारे दिमाग में भी तस्वीर नहीं होगा कि यार सीटी स्कैन वाली चीज याद रखने बथेरी को। ठीक है, इतना गहराई में सवाल पूछता है। ठीक है, एंड यू नीड टू नेम द फिजिकल एग्जामिनेशन। सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड तो शायद दूसरा, अल्ट्रासाउंड यहाँ पे है, आई डोंट थिंक सो। ब्लड कल्चर, आई डोंट थिंक ब्लड कल्चर यहाँ पे मेंशन है, या यहाँ पे मेंशन नहीं है। ठीक है ना, भारत। ठीक है ना, ऑल ऑफ दिस इज गोइंग इन डेप्थ इनटू मेडिकल। ठीक है ना, बट दिस इज इन डेप्थ। ठीक है ना, सो अच्छा, देयर मिक्सचर ऑफ द आंसर इज वेरी बैलेंस्ड। ठीक है, इट्स फेयर, यू कैन नॉट आर्ग्यू अनफेयर है, इट्स वेरी फेयर। ये 3 चीजें उन बच्चों के लिए जिन्होंने पूरा पेपर पढ़ लिया, जो ओरिजिनल रिसर्च पेपर आता है। ठीक है, ये उनको समझ में आएगा। ये क्वेश्चन जवाब उनके लिए जिन्होंने सिर्फ बुक तक अपने आप को लिमिट किया है। बट अल्ट्रासाउंड भी यहाँ पे लिख देते हैं ना, काउंट होता। अल्ट्रासाउंड नहीं है क्योंकि उनके पास जगह खत्म हो गई। यहाँ पे लेकिन लिखा होगा कि यू नो व्हाट, कोई और आंसर भी कंसिडर कर लेना।
लिखा होता है 12, खैर। तो सो व्हाट आई एम सेइंग, एक मिनट, आई हैव अ क्वेश्चन, व्हाट इज दैट? अच्छा, अल्ट्रासाउंड है, मुझे नजर नहीं आ रहा, ठीक है, थैंक यू फॉर पॉइंटिंग इट आउट, ठीक है, मुझे नजर नहीं आया। अच्छा, अच्छा हाँ, यहाँ पे लिखा हुआ है, शिट, ओके। सो व्हाट आई एम सेइंग इज, ठीक है ना, this is the level of in-depthness you have to go when you are solving paper 4, ठीक है, and this is somewhat similar to what the level of in-depth you have to go when you're solving the question for paper 1 के AS psychology, right? सब कुछ चीजें याद रखना पड़ता है भाई, उस कौन सी डिजाइन मारा हुआ है या एग्जैक्ट नाम याद रखना पड़ता है। सेम विद दिस, सो every single word counts, सही है, leave nothing to chance, क्योंकि I've seen kids missing out on A grade just by 5 marks. अच्छा, I need to go over the grading threshold with you guys as well, and that's the good news. Grading threshold, good news है तुम्हारे लिए, ठीक है ना? I'm just gonna show you why exactly. लेकिन grading threshold देखने के बाद you're also gonna understand the severity of why you need to remember small details. ठीक है, let's go forward, फिर मैं तुम्हारे पास आऊँगा grading threshold के ऊपर। अच्छा, आई नो कि एग्जाम होता है, स्ट्रेस होता है, टाइम लिमिट कम होता है, दैट्स द सिचुएशन दैट गेट्स द बेटर ऑफ अस समटाइम्स, लेकिन इफ यू रीड, ठीक है, तुम फंसोगे नहीं, जस्ट रीड थिंग्स, ठीक है। व्हाई? इसका ना देखो, suggest one advantage of a physical examination over a clinical interview, right? Simple question, I know what's relaxing भाई, फिजिकल एग्जामिनेशन करने से क्या फायदा है ओवर अ क्लिनिकल इंटरव्यू? तुम्हारे दिमाग में फौरन जवाब है, बायसनेस नहीं होता, ऑब्जेक्टिव रिजल्ट्स आते हैं, यस आई एग्री विद दैट, लेकिन it has one this, using an example of this study, this is what changes an answer from a 0 to a 2. If you say general but you don't refer the आखिरी वाला part, you're done, ठीक है। So the reason this is A2 psychology is because you need to be specific in your answer. General answer AS तक चलते थे, now you need to be scenario specific, ठीक है। So you need to relate your answer to a scenario. So for example क्या कहते हैं, अगर फिजिकल एग्जामिनेशन करते हो साइंटिफिक इक्विपमेंट इस्तेमाल होता है, ठीक है ना, क्लिनिकल इन्फो ये, ठीक है ना, आई डोंट अग्री विद दिस आंसर, ठीक है ना, क्योंकि स्टिल जनरल, ठीक है, स्टिल जनरल, still general, right? So yeah, so these are all 1 mark answer, right? Detailed description देना पड़ेगा and use of example. So इसके अंदर कोई use of example नहीं है, so तुम क्या करोगे, after whatever you choose from this लिख लेना, इसके बाद में आगे कुछ लिखना पड़ेगा which refers to the scenario of Alim and Ajaran की study. For example, Munchausen syndrome वाले लोग lie. That's one of the features of Munchausen syndrome. So when clinical interviews happen, ठीक है ना, person can lie, but a physical examination will show objective data, ठीक है ना, which is free of any biases or demand characteristic, which may be helpful in finding out whether the person is lying about their physical illness or not, and also we can also find out how the physical illness was caused by, because अली मजान ने जब उन्हें कल्चर लिया था, पता चला कि बहुत सारे बैक्टीरिया थे इनसाइड द कल्चर, एंड नॉर्मली जब कोई इन्फेक्शन होता है ना, सिर्फ एक टाइप ऑफ जरासीम उस कल्चर के अंदर होता है, उनके एक्सपेरिमेंट के अंदर कल्चर के अंदर बहुत सारे जरासीम थे, एंड दैट इज वेरी अनयूजुअल, and that is not what usually people find in infections, so people suspected there was something else is going on. So you need to refer details of a particular study, ठीक है। um, yeah, basically this, acha, this is general case studies, all you need to do is like refer to Munchausen syndrome, ठीक है ना, कि भाई केस स्टडी से क्या फायदा है। केस स्टडी का ये मसला है कि एक बंदे के ऊपर वी कैन नॉट बी श्योर कि कोई झूठ बोलते रहते हैं, जनरलाइजेबिलिटी का मसला आ सकता है, ठीक है ना। एडवांटेज ये होता है कि यू नो व्हाट, यू कैन फाइंड आउट हाउ डिफरेंट पीपल डेवलप डिफरेंट सॉर्ट ऑफ इलनेसेस इन मंचौसन सिंड्रोम। तो एक डिसऑर्डर के अंदर तुम्हें पता चल जाएगा बहुत सारे तरीके कैसे करते हैं लोग अपने आप को बीमार करने के लिए, ये पता चल जाएगा केस स्टडी से, ठीक है ना। यू कैन ऑल्सो फाइंड हाउ इट डेवलप्स एज वेल, कि क्या series of events होते हैं that makes this person develop a Munchausen syndrome disorder, ठीक है ना, and how different stages of life के अंदर बंदा Munchausen syndrome के symptoms display करता है, बचपन में क्या करेगा, अडल्टहुड में क्या करेगा, बुढ़ापे में क्या करेगा, right? या ग्रेडिंग थ्रेशोल्ड मुझे दिखाना तुम लोग को।
अच्छा हाँ, ग्रेडिंग थ्रेशोल्ड यार, ठीक है। 2020 विंटर, समर का नहीं है मेरे पास। ओ या, so I'm gonna go with the latest grading threshold जो winter 2020 का है, right? अभी जो अक्टूबर नवंबर 2020 गुजरा है। So तुम्हारा जो कंपोन, I don't know कौन कहाँ से आ रहा है, right? But I guess you all are from Pakistan, so उसके हिसाब से रेफर करूंगा। So your component is gonna be 42 32, right? ये कंपोनेंट, राइट? अच्छा, तुम्हारा हर पेपर 60 मार्क का होता है, यू शुड नो दिस बाय नाउ। फॉर AS A2 जो भी है 60 मार्क का पूरा पेपर है। लुक एट द ए ग्रेड, मतलब आधा पेपर छोड़ने पे तुम्हें 30 ए ग्रेड मिलता है। पेपर 4 के अंदर ये सीन। अच्छा, दिस इज नॉट, क्या कहते हैं, रेयर, इट इज कॉमनली सीन इन अक्टूबर नवंबर पेपर के इतने कम ग्रेड थ्रेशोल्ड दिए जाते हैं। लेकिन व्हाट इज एवरेज, एवरेज क्या होता है ऑन नॉर्मली सर्कमस्टेंसेस? तुम्हारे पास जो ए ग्रेड आ रहा होगा ना, व्हाट आई हैव सीन, ठीक है ना, उसका खोल देता हूँ मार्च का, दैट्स गोना गिव यू आइडिया। या कोविड की वजह से भी ये थोड़ा बहुत मसला आ सकता है। कोविड की वजह से इन्होंने ग्रेड थ्रेशोल्ड कम कर दिया होगा। सो आई एम गोना शो यू प्री कोविड वंस एज वेल, सो यू कैन गेट अ बेटर आइडिया कि क्या सीन है ये। कहाँ गया? We have this one, we have this one. So let's, ये कौन सा 2019 का, 2019 जून, right? Okay, this is the oldest one I was able to find, पता नहीं क्यों। So normally तुम्हारे पास जो होता है ना, ये AS and A2 के लिए दोनों सच है कि 40 पे A होता है। अगर आप बदनसीब हो तो 43 पे होगा, लेकिन ज्यादातर A जो है 40 पे देते हैं। B जो, अच्छा, द डिफरेंस बिटवीन वन ग्रेड नेक्स्ट ग्रेड इज 4 या 5 मार्क्स, 4 या 5 मार्क्स बाद अगला ग्रेड शुरू होता है। तो यहाँ पे 4 का डिफरेंस है, राइट? किसी में 5 ही नहीं, ज्यादातर में 4 का देखा है। सो 4 मार्क्स कैन डिफरेंशिएट बिटवीन यू गेटिंग ए, यू गेटिंग अ बी। 8 मार्क्स कैन डिफरेंशिएट बिटवीन यू गेटिंग इनटू अ यूनिवर्सिटी और यू नॉट गेटिंग इनटू अ यूनिवर्सिटी। ए एंड सी के बीच में सिर्फ 8 मार्क का डिफरेंस है, राइट? सो या, अच्छा, दिस वाज द जून 19, फिर विंटर 19 इसके बाद आया था। या आई सोल्ड यू कि विंटर के अंदर थोड़ा ग्रेड थोड़ा आसान कर देते हैं, बट लार्जली, ठीक है ना, द